Okay. Let's have a quick introduction and then we can discuss about the video same. Mr. Hari, please, small introduction. Are you there? Yes, I'm here, Uh-huh. Vishal. Vishalji. Good evening. And my name is Hari Kutti, and I'm currently working with NCI as a product development manager. I am based out in Mumbai and been part of this Learning Well traveling group since last 8 months or more, I guess. So Okay, thank you. that's Diptanshu. Hello everyone. So my name is Diptanshu Samanta and I am currently pursuing BTech from KIT University and I recently joined Learning while traveling as the Chief Marketing Officer. Okay, thank you. Preeti. Hello everyone, I'm Preeti Agarwal from Kolkata, pursuing BMS Media Science, and now I'm working with learning while traveling as an operation manager. Thank you. Thank you. Atul sir, please. Are you there? Atul sir is getting disconnected. He's joining again. Maybe Preeti you can help. Yes, sir. Okay, so let's so okay, let's start from Diptanshu. So Diptanshu, the video we just saw, what's your मतलब सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें उसमें, या सबसे जो पहला टेक अवे? मतलब उसका मतलब सभी क्वेश्चन रिलेटेड टू टीम बिल्डिंग एंड को-फाउंडर से कैसे मैच करके क्या होना चाहिए। तो आई थिंक एक उसका मतलब जो नियर बाय का सीईओ अंकुर ने जो बताया वही थे कि मतलब जब आप एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं तो आपका टीम एंड आपका को-फाउंडर सही होना चाहिए ताकि वो आपका विजन को समझ सकते हैं एंड वो उसको आगे ले जा सकते हैं आपके साथ। तो वही मेन चीज मुझे जो मतलब आई गॉट द लाइक मुझे जो अट्रैक्ट किया इस वीडियो से। दैट्स गुड। हरी जी, आपको क्या अच्छा लगा? the regarding that video. Actually, Yes, yes. I नहीं, joined जो a भी bit late. whatever you saw, I think last Uh, minute. so later on came to know that he is the owner of Nearby. So it's a pretty good app, You which have used it nearby? yeah, I have used it. Earlier, I used frequently. Then offers started reducing. Then I haven't used it later on. So actually, this is a Bangalore-based startup, if I'm not wrong. So I think they are in Gurgaon or something. But anyway, maybe they moved. okay, okay, I've seen their office in Bangalore. So Yeah, I they thought, might have offices yeah, yeah, on nearby metros, Flipkart, क्योंकि nearby. वो जब तक मेट्रोज में ही ज़्यादा डील होता है ना इस तरह का। Right. So yeah, spoke very well, regarding the co-founder or जिस टाइप से जो insight दिया उन्होंने regarding entrepreneurship, what are the qualities that you should possess so that you can become a successful entrepreneur. It was very informative and very good discussion. I actually would like to see the entire video. If you can share the link, I'll definitely go through it. Sure, sure. I will definitely share that in the group after this session. Atul sir, were you able to see a bit? Um, Hi, I could hear most of it, and I agree with exactly what he said. Very good points he made. He covered most of the points and an entrepreneur pretty well. So Okay. Any specific, particular point you like? हाँ Want to reiterate? तो एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है उन्होंने जो हाईलाइट किया
कि इनिशियली जो लोग बोलते हैं ना कि आपने टीम बिल्डिंग का पॉइंट उन्हें काफी एम्फसाइज अच्छे से किया कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आइडिया वैलिडेशन पे भी उन्होंने अच्छा से बोला कि इनिशियली सबको लगता है कि मेरा आइडिया बहुत जबरदस्त चीज है, ये है, बट वो जो पॉइंट जो बोला ना कि जरूरी नहीं कि आप कुछ नया आइडिया, नया प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करो, एग्जिस्टिंग को ही अगर आप बेटर कर सकते हो, जो मैं भी बार बार हाईलाइट करता हूँ, तो जो कि उन्होंने किया भी। Sure. Preeti, what's your take? Yes, sir, I agree with Arul sir and all. So basically यही है इसमें, like as a PR student, तो सर मेरा भी यही कहना है कि like उन्होंने जो भी पॉइंट्स रखा बहुत क्लियर था एंड अच्छे से उनको मतलब डिस्क्राइब भी किया। एंड सर जो अतुल सर जो पॉइंट बोल रहे थे वो भी अच्छा है, लाइक कि हम लोग दूसरे नया प्रोडक्ट या उसके अंदर वेरिएशंस करने से अच्छा है अगर हम उसमें ही प्रोडक्ट को ही अगर हम लोग अच्छे से डेवलप कर दे, कुछ नया है या जैसे पहले जैसे कि मतलब बहुत मान ज्यादा लीजिए फुल्ली नया नहीं, थोड़ा मोड़ा चेंज करके थोड़ा बहुत रिलॉन्च। चेंज कर दे। जैसे फेयर एंड लवली का आप देख लीजिए एग्जाम्पल, लाइक कंपनी नहीं बट उसका अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे ना तो सर पहले लाइक फेयर एंड लवली का पहले नॉर्मल ऐड आता था, बट वो लोग ऐड कर दिए इसमें HD ग्लो एंड ऑल। तो सर एक होता है ना अट्रैक्ट, एक कस्टमर लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये। तो सर वही है कि प्रोडक्ट में अगर ध्यान दो अच्छे से तो मतलब रीडिजाइन अगर करो तो हो जाता है अच्छे से। और उस वीडियो में उन्होंने एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बहुत कुछ बोला, पार्टनरशिप के बारे में भी थोड़ा बहुत बोला, कोडिंग ये सब के बारे में पता चला। तो ओवरऑल सभी उसमें अच्छा था। सर आप मेरे को लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। श्योर शेयर तो करेंगे ही। तो एक चीज और बहुत सबने देखा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ही स्पोक वेरी वेल। आई मीन द वे ही वाज स्पीकिंग, सो कॉन्फिडेंट, सो क्लियर, सो सो मच क्लैरिटी, ये ना, टू द पॉइंट टाइप, डॉट 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 डॉट, है ना। ये कला अब मतलब सीखना, मे भी जिंदगी बीत जाए लोगों के और ना सीख पाए। दीप्तांशु, व्हाट डू यू थिंक? यस सर, एग्जैक्टली, मतलब कम्युनिकेशन स्किल तो सभी जगह काम आते हैं। तो कम्युनिकेशन तो सबका अच्छा होना चाहिए। एंड एक फाउंडर और एक जो मतलब कंपनी को आगे ले जाने का सोच रहा है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि उसको ही पहले पिच करना होता है एंड पहले टीम को भी समझना होता है क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन एक बढ़िया चीज, मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एक आप जब कंपनी फॉर्म कर रहे हो उसको दिमाग में रख के चलना टीम चाहिए। में किसी एक का एटलीस्ट, मतलब मिनिमम लेवल पे किसी एक का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएंगे, और वो ज़रूरी भी है लोगों को हायर करने में, इनिशियल कस्टमर्स खोजने में। हरी जी, आपका क्या राय है इस बारे में, कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंस फॉर अ फाउंडर और द फाउंडिंग टीम? हेलो। हाँ बताइए, हाँ। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर द फाउंडिंग टीम। Yes, definitely. Founding team का जो communication skill है, that will decide the future of that company. और अगर आपका co-founder या founder is very smart or very his negotiation skills are very good, so maybe you can go further in the organization and have a very good successful tie-ups. Funding आपको raise हो जाएगा immediately. And it is everything about how you present to the client or to the investor, that takes you like makes you successful, or makes your business more attractive. और वही है कि मतलब communication और skills अदर वे matter a राउंड lot. ऑल्सो। Yes. If you don't communicate, then you might, if you are not conveying the message, or if you are not able to deliver it properly, then it goes the other way around. You might बैकफायर हो जाएगा। आई backfire मीन हो जो जाएगा. अंकुर वारिको ने बोला ना
प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो आप 4 लोग को बताएंगे, हाँ, खराब लगा तो ऐसा ना हो कि इतना खराब लग जाए कि 40 लोग को वो उल्टा बता दिया कि उसका प्रोडक्ट नहीं तो है, इधर वो में यूज करना आप। कैन गो यस haywire. यस Preeti, what do you think about this? I mean, ये communication skill for a founding team. यस, तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, द वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी लोग मैसेज जो पहुंचा रहे हो उसमें, मतलब एक होता है ना, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, तो बहुत कुछ होता है सर, वो सब चीज हैंडल हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल से। सर ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और मैं जैसा समझता हूँ, और हम लोग इनफैक्ट सम ऑफ यू नो कि हम लोग ये 8 PM एक कम्युनिकेशन एक्सरसाइज भी करते हैं, कम्युनिकेशन क्लासेस करते हैं, वेयर वी लेट पीपल प्रैक्टिस ऑन वेरियस क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस एक्सेट्रा। हमें हमें ये लगा था, हमारा स्टार्ट करने का भी मोटिवेशन वही था कि ये एक स्किल है ना जो आपको मरते दम तक काम आएगा, नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने फैमिली में काम आ जाएगा, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी काम आएगा, आप लोगों से बात करते हैं वहाँ पर काम आएगा, दोस्तों से बात करते हैं वहाँ भी काम आएगा। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको काम, मतलब ये आपको वेस्ट लगेगा कि अरे जरूरत क्या है। अतुल सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई मीन, डू यू थिंक आई एग्री कम्युनिकेशन विद इज अ दैट लाइफ लॉन्ग? कम्युनिकेशन स्किल तो आप एज ए एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए लीडर, एज ए फैमिली पर्सन हर जगह काम आएगा। बट एक स्किल को मैं उससे भी ऊपर लूंगा जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट, एंड दैट्स लीडरशिप। तो लीडरशिप जो की थी इनमें भी जो आज एंटरप्रेन्योर थे, तो लीडरशिप है तो बाकी सारी चीज आ जाएगी। और लीडरशिप के क्राइटेरिया में एक कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा, टीम बिल्डिंग कैसे, आप टीम मैनेज कैसे करते हो, सेल्स और बाकी सारे स्किल्स। तो मतलब स्किल्स तो बहुत सारे लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज करूंगा कि नंबर 1 लीडरशिप, और उसके कंपोनेंट्स में मैं दूंगा कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग एंड एवरीथिंग एल्स एंड सेल्स स्किल्स। या श्योर नहीं, वो तो सही है, बट लीडरशिप स्किल्स का क्या है कि आई मीन सारे लोग में नहीं होगा शायद, but at least let's say somebody is leading, but then there is a follower also, but that follower probably also needs a good communication in terms of listening and responding, so that that person can communicate to that leadership person kind of. अच्छा, एक और चीज़ इसमें मतलब बोला गया, आई थिंक इस पे थोड़ा सा बोला भी मैंने, ये बहुत अच्छा बोला कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आपके प्रोडक्ट को लोग यूज़ करें और 4 लोगों को बताए या जो भी है, उस तरह से ऑटोमेटिक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। बट द रियलिटी इज़ कि सारे प्रोडक्ट उस लेवल के नहीं होते, तो उतना वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिक पब्लिसिटी तो नहीं हो पाता जनरली। सो बट देन देयर इज अनदर थिंग कि एक प्रोडक्ट बना, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप उसको रीलॉन्च किए, थोड़ा सा अच्छा करके बेचने की कोशिश किया, वापस थोड़ा सा कम प्राइस कर दिया या कुछ और ऐड कर दिया बेनिफिट्स, वैसे कर दिया, तो वैसे केसेस में यू विल सी कि ओवर मार्केटिंग या मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करना होता है। सो मे बी इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दैट मार्केटिंग एंड द प्रोडक्ट इम्पैक्ट काइंड ऑफ। सो अतुल सर, आपका क्या राय है इस बारे में? मतलब ये मार्केटिंग वर्सेस प्रोडक्ट, ये कशमकश टाइप तो हाँ, सारे एंटरप्रेन्योर के लिए होगा। इस पे क्या है ना कि मैं जब जी में था, और बाद में जी का आइडिया नहीं किसी और कंपनी का था, मैं भूल गया, एक कॉन्सेप्ट आया था नेट प्रमोटर स्कोर। तो आपका जो प्रोडक्ट है, पहले लोग कस्टमर सर्विस वगैरह हमेशा लिया करते थे, तो उसी में नेट प्रमोटर्स का है कि कितने लोग आपको रेफर करेंगे अपने दोस्तों को और दूसरे लोगों को आपके प्रोडक्ट को यूज करने वाले रेफर करेंगे, और एक रेटिंग की जगह तो प्रमोटर बोलेंगे उनको, और जो रेफर नेगेटिवली करेंगे तो उनको डिट्रैक्टर बोलेंगे। तो प्रमोटर और डिट्रैक्टर और कुछ लोग न्यूट्रल हैं, तो उसको स्कोर को मिला करके किया था। मुझे याद नहीं है किसने किया था कॉन्सेप्ट, वॉलमार्ट, जी में तो मैंने सीखा था ये। तो नेट प्रमोटर स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि अगर आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में आपको सपोर्ट करने वाले ज्यादा हैं
डिट्रैक्ट करने वाले भी, नेगेटिव बोलने वाले भी तो हमेशा रहेंगे ही, लेकिन प्रमोटर ज्यादा है, डिट्रैक्टर कम है, और न्यूट्रल नेट स्कोर आपका प्रमोटर स्कोर एक वन मेट्रिक अगर किसी को ध्यान रखना है तो दैट इज दैट, कि आपका नेट प्रमोटर स्कोर हाई होना चाहिए, और उसमें बाकी सारी चीजें हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी अच्छी है, कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है, आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है। बट अगर किसी एक मेट्रिक को अगर किसी को देना पड़े तो, और या अमेजन के भाषा में बोले तो लोग कस्टमर सर्विस को बहुत ज्यादा, कस्टमर ऑब्सेशन जो बोलते हैं, तो नेट प्रमोटर स्कोर और सिमिलर रिलेटेड चीज है कि कस्टमर आपको प्यार नहीं कर, आपको लाइक नहीं करते, प्यार टॉलरेट नहीं करते, बट आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए लड़ाई करेंगे। जैसे कि बहुत सारे जो होते हैं ना, कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा फैन है आईफोन का, और कोई दूसरा है कि नहीं मैं तो गूगल ड्राइव को सपोर्ट करता हूँ, कोई बोलेगा कोई एप्पल सपोर्टर, लेकिन कोई एप्पल वाला गूगल वालों से दोस्ती तो हो जाएगा, तुम गूगल वाले हो, तुमसे बात नहीं करना, तुम दूसरे गैंग के हो, वो कल्ट टाइप जो फॉलोइंग हो जाते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कंपनी कर पाती है। रिलीजन और पॉलिटिक्स में बहुत दिखता है ये। हाँ, ये ओरिजिनल पॉलिटिक्स से ज्यादा सेल्स कहीं नहीं जरूरत होता है, वहां पे आप इनविजिबल इंटेंजिबल चीज बेच रहे हो, किसी ने भगवान को देखा नहीं, न किसी ने हनुमान जी को देखा, न किसी ने अल्लाह को देखा, न किसी को देखा नहीं, बट फिर भी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों को वो लोग बेच पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास काफी अच्छी सेल्स स्किल है, और उसमें वही उन्होंने वो कल्ट टाइप जो फॉलोइंग क्रिएट कर देते हैं ना, जो रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, अभी देखिए अभी जो साउथ अफ्रीका में इंडिया ने जीता, तो क्रिकेट को लेकर जो इंडिया ऑब्सेस्ड है, या हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज को लेकर जो ऑब्सेशन है, तो फिल्म्स में, स्पोर्ट्स में, और सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में, इन सब चीजों में वो आपके जो फैन बनाना, फैन नहीं, फैन से भी ज्यादा भक्त वाला चीज, कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, जैसे पॉलिटिक्स में कंट्री वो यूज करती है कि आप देश के लिए मैं कारगिल पे जाकर कोई जान दे रहा और कुछ नहीं दे रहा, तो स्ट्रीट पे, रोड पे ही झगड़ा तो कर ही रहा है अपना, कि देखो पाकिस्तान का मैच, इंडिया अगर पाकिस्तान को से किसी ने सपोर्ट कर दिया तो सारे लोग उसकी पिटाई उटाई कर देंगे, तो उस तरह का ऑब्सेशन, फैन फॉलोइंग बनाना भी बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का एक सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट एम सबका होता होगा, बन पाए ना बन भक्त पाए वो बनाना आगे है। का स्टोरी है। ऑलमोस्ट भक्त बनाना। करेक्ट। एक और चीज था, बहुत शुरू में बोला था इस वीडियो में ही, कि आपकी स्टोरी को आप खुद ओन करें तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मतलब कि है कि अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं तो आपकी फाउंडिंग टीम में से या आपकी कोर टीम में से कोई एक पब्लिक फिगर टाइप बने, या पब्लिक के बीच जाया करे, अपनी स्टोरी बताया करे। लेट्स से यूट्यूब चैनल चलाया अंकुर वारिको ने, तो उसमें उसने जस्टिफिकेशन ये दिया कि हमारी स्टोरी को कोई कुछ भी छाप दे, इससे पहले हम ही अपनी स्टोरी को पब्लिक के सामने ले जाए, रादर देन किसी को कुछ भी छापने दे। इससे क्या है कि एक ऑथेंटिसिटी बनती है, और लोगों को मतलब somebody from the company is directly communicating. Not many companies do this. I can say maybe 50-50 टाइप्स, ये ना, आधी कंपनी ऐसा कुछ करती होगी, आधी कंपनी तो ऑलमोस्ट पता ही नहीं चलता है कि कौन चला रहा है उस कंपनी को। कभी किसी का डेथ हुआ कंपनी में तब न्यूज़ आ जाता है। हरी जी, आपका क्या राय है? मतलब तो विशाल जी, उसमें क्या होता है ना कि कुछ कंपनी में जो सीईओ या जो फाउंडर है, दैट पर्सन इज द फेस ऑफ द कंपनी। जेफ बेजोस अमेज़न के लिए, एप्पल के लिए पहले स्टीव जॉब्स हुआ करते थे, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। किसी कंपनी में किसी फाउंडर के पास होता है कि उनका वो पर्सनालिटी नहीं है, दे वुड रादर बी इन द बैकग्राउंड, जैसे अभी एप्पल के टिम कुक हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो बैकग्राउंड में रहेंगे, वो ऑपरेशन संभालेंगे, अच्छी टीम जुटाएंगे, और एक अच्छे ऐसे सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम रख लेते हैं जो कि उन दुनिया में इवेंजलाइज करे उनको। जैसे मैं जब जी में काम करता था, तो जैक वेल्च के जमाने में, जैक वेल्च तो बहुत बड़े लीडर थे, लीडर ऑफ द सेंचुरी एंड ऑल दैट मिला, बट उनके साथ जो बाद में उनको सक्सीड किया जेफ इमेल्ट ने, तो जेफ इमेल्ट भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने एक लेडी को जो वाइस चेयरमैन, फर्स्ट फीमेल वाइस चेयरमैन बनाया, बेथ कॉमस्टॉक को। तो सी वाज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। आप किसी भी टेड फोरम पे जाइएगा, किसी भी दुनिया के बड़े फोरम्स पे, तो सी वुड बी द वन प्रेजेंटिंग द स्टोरी ऑफ जी,
कि कैसे जी ऐसे है वैसा है। तो स्टोरी इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर एंड वेरी स्मार्ट पर्सन। तो वैसे आप जरूरी नहीं कि जो सीईओ फाउंडर ही बिकम्स द बिग स्टोरी टेलर, यू नीड टू हैव समबडी इन योर टीम, वो आपके सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड हो या आपके प्रोडक्ट इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, बट यू नीड टू सम पीपल जो कि आपके लिए भक्त बनाए या लोगों को, दुनिया को ये करे। आपका और एक और प्रचार पॉइंट ऐड करें। करूंगा लास्ट कि कभी कभी कस्टमर कोई कोई नाराज हो जाता है आपसे, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो उसको आप कैसे डील करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि किसी कस्टमर के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ तो अमेजन तो बहुत ऐसे करता है, सब प्रोडक्ट बिना सवाल पूछे लौटा देंगे वापस। और बहुत सारे कंपनी फाउंडर करते हैं कि किसी भी कस्टमर के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ या एम्प्लॉय के साथ भी बैड एक्सपीरियंस हुआ तो दे विल मेक अप फॉर इट, एंड वो जरूरत पड़े तो माफी मांगेंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे, बट दे विल नॉट लेट अ बैड एक्सपीरियंस डैमेज द ब्रांड। करेक्ट। दीप्तांशु, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये पब्लिक में आना किसी टीम का हाँ, मतलब ये जो अतुल सर ने बोला कि रिगार्डिंग द इवेंजलिस्ट है, मैंने ये टर्म पहले कभी सुना नहीं था। मैंने ये पहले सुना जब एक एआर मीट करके अभी एक नया, मतलब नया नहीं, मतलब इस लॉकडाउन में ही करेक्ट एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम आया है। तो उस टाइम मैंने देखा कि उन लोग का जो फाउंडर है ये है, उन लोग ने एक मतलब TEDx स्पीकर, मतलब उसका मतलब वो एंटरप्रेन्योरियल स्पीच देते हैं एंड उसका बहुत सारा फैन फॉलोइंग है। तो उस कंपनी ने, एयरमिक ने क्या किया, वो जो स्पीकर है उसको एज अ स्टार्टअप इवेंजलिस्ट रख दिया उसके कंपनी में, एंड ही इज द फ्रंट फेस ऑफ द कंपनी। लाइक एयरमिक का पीछे तो सीईओ CTO सब है ही, लेकिन उसका जो मेन मार्केटिंग करता है, मतलब जो फेस ऑफ द कंपनी है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सामने है, आपका कौन, मतलब जैसे आप LWT को एज अ फ्रंट, एज अ ब्रांड आप ये करते कि विशाल कुमार एज अ पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग LWT, वैसे ही ARMIC का जो है वो मतलब आकर्षण शेट्टी करके है, जो उसको मतलब एक स्टार्टअप इवेंजलिस्ट एज अ ज्वाइन किया है ARMIC को, जो आकर्षण रिप्रेजेंट शेट्टी कर है शिमला वाले ना, पब्लिक। वो आए हैं हमारे वन ऑफ द इवेंट में भी। आई हैव मेट हिम वंस। श्योर। तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई सो थिंक जरूरी है। मतलब यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो वही एक चीज है कि आपका जो मतलब आपके जब खुल कर रहे हैं, आप किसी उसका ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, मतलब कंपनी का सामने होके आ सकते, लेकिन किसी का होता है कि उसका उतना फेस वैल्यू नहीं रहता है, तो तब वो क्या करके किसी को और दूसरे को किसी को हायर कर लेके, वो जो सामने से उसका अभी ये देखने को मिलता है, अभी ये रियलिटी है, तो क्या ही कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। प्रीति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब कोई हमेशा होना चाहिए, यू हैव स्टडीड पीआर और यू आर स्टडीइंग पीआर राइट नाउ, डू यू थिंक इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू हैव अ फेस ऑफ कंपनी पॉसिबली? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ सर, लाइक हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। आई थिंक आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। ओके। हाँ सर, तो मतलब फेस एक होना चाहिए कंपनी का, जो कंपनी के बारे में भी मतलब एक एक होता है ना, एक एक्सटर्नल एम्प्लॉयज होते हैं और एक बाहर के भी होते हैं, जो लाइक इम्पोर्टेंट ही होते हैं, दोनों को ही हैंडल करना चाहिए, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल को। तो सर एक होना चाहिए जो आपके एक्सटर्नल को भी लाइक हैंडल करे, जो मतलब एक फेस होना चाहिए कि जो मतलब आपकी कंपनी के बारे में भी बताए औरों को, जिससे औरों को भी करेक्ट पता चले आपकी कंपनी के बारे में, एंड अच्छे से प्रमोशन ये सब भी हो। तो सर एक होता है ना कि कंपनी के बारे में बताते रहे तो लोगों को भी इंटरेस्ट आता है कि इसमें और क्या है, जानने में भी इंटरेस्ट आता है। तो बहुत जन होता है ना कि बहुत जन उसके थ्रू ज्वाइन भी कर लेते हैं, करना चाहते हैं या कर लेते हैं, जो भी है। करेक्ट करेक्ट। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों साइड चाहिए। इंटरनल मतलब एम्प्लॉयर वाला रिलेशन, एक्सटर्नल मतलब पब्लिक से। दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों अलग भी हो सकते हैं। हरी जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई मीन, शुड अ कंपनी ऑलवेज हैव अ फेस टू, फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पीपल?
फेस इन द सेंस हाँ भी आ रही है, ठीक है जी, कंटिन्यू प्लीज। आप फेस इन द सेंस बता सकते हैं इस मतलब जैसे like Ankur Warikoo is the face of Nearby, right? And he राइट might be the face for his own employees as well, right? Like a public figure or approaching that PR करने के लिए वगैरह वगैरह। But like मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, like CCD वाला बोला भी था मैंने। CCD के CEO के बारे में हमें पता ही नहीं चला till उनकी डेथ की न्यूज़ आती है। तो मतलब वो है अनफॉर्चुनेट केस कि राइट लोग जानते ही नहीं आपके बारे में, करेक्ट या जो भी है सब। तो डू यू थिंक क्या होना चाहिए, दोनों का बैलेंस क्या हो सकता है? मतलब एक साइड कंपनी इज ऑलवेज इन द लाइट, एक साइड थोड़ा लाइक इलॉन मस्क आल्सो, सीईओ इज आल्सो इन द, सीईओ या कोई भी मतलब वन ऑफ द फेस ऑफ द कोर टीम या कंपनी। एग्जैक्टली कोई ना कोई कोर टीम में से, या मे बी द सीईओ शुड बी अ वेरी गुड शुड बी वेरी गुड इन पीआर, एंड मतलब ही शुड बी द फेस ऑफ दैट कंपनी, सो दैट लोगों को पता चले कि बाकी के जो फाउंडर्स है या कंपनी में जो मतलब स्ट्रेटेजीज है या कंपनी की जो वर्किंग है कैसे है, उसको प्रेजेंट करने वाला कोई एक बंदा रहना चाहिए करेक्ट हमेशा. So there should be a person who should like tell the people about, explain the people about their strategies, about the company services, about the products that they want to offer. So that is required as such. It is very essential. और not necessarily कि CEO या founder या co-founder को ही होना चाहिए. Maybe you can hire someone also who can rightly tell your strategies or rightly explain to the public what exactly the company is doing. वो करेक्ट काफी काफी कंपनीज ऐसा भी करती है कि they hire some PR representative and they do the job from get it done from. करेक्ट 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 आई गेस द कंपनी कैन ऑलवेज डिसाइड कि अगर कोर टीम या फाउंडिंग टीम में कोई नहीं है या लोग बिजी हो हाँ रहे हैं, तो राइट लेट्स हैव अनदर काइंड ऑफ पब्लिक another फेस person correct और इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ टू प्रमोट व्हाट दे वांट टू से, राइट? ओके चलिए, आज थोड़ा लेट भी हो गया, सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू thank टॉपिक। you थैंक यू, गुड नाइट। good night.